Pash, so our topic is very important today, and the topic is motion in plane. First of all, I will make some basics of these chapters. Then assignments are already been distributed to you people. If time will be left, we will be discussing assignment. Okay. So today and Thursday, in 2 sessions, we will cover up the what chapter? Motion in a plane, along with concepts and questions. Right? So everybody please write down the heading. Please write down the heading. Motion in a plane. Hurry up, but don't waste time because we have very precious minutes. Motion in a time. Date. Also mention the date. Shabash bete. First of all, we will be discussing certain concepts. Concepts. Shabash, hurry up. Let me talk about concept number 1. What is meant by motion in a plane? Look here. If I show you 3 rectangular axes, when I say rectangular axis, all the 3 x-axis, y-axis and z-axis are mutually perpendicular to each other. Now you see, if I draw this particular section, it is called xy plane. So if a body moves in this section, then I will say this motion of the body is a planar motion because it remains in the plane xy. It is not taking the benefit of third axis, z axis, because it is not coming out. Similarly, if I draw this particular plane, yellow one, and somebody is traveling in this way, that means the body motion is in xz plane. This motion, yellow color arrow, will also represent planar motion. Why? Because while this movie body is moving in the xz plane, it is not leaving the space. No need to mention the y plane, y coordinate. Similarly, if I draw this in say white color, this plane is known as YZ plane. So if somebody is moving in this plane, that will also be a planar motion. While representing the motion of a body in the YZ plane, I have to mention 2 coordinates, Y and Z, because body remains in the YZ plane. As it is not moving along the x-axis, so x-axis coordinate will remain 0 if the body is moving in the YZ plane. So therefore, out of the 3 coordinates, x, y, z, if a body moves in such a manner that one of the coordinate remains 0, then the motion is called planar motion. Write down. Planar motion, everybody. Planar motion is that motion of a body. Planar motion is that motion of a body in which
in which at any general moment, in which at any general moment, general position, in which at any general position, comma, we need to mention, we need to mention two coordinates, two coordinates as non-zero, two coordinates as non-zero, but third coordinate, third coordinate as zero. Example, example, P in the bracket, देखो P in the bracket, what the teacher is writing, 7, 3, 0. Look here, teacher has given x coordinate 7, y coordinate 3, but z coordinate as 0. That means third coordinate is made 0. Third coordinate made 0, z is 0. It means the motion is in xy plane. So लिखोगे P represents position of a body, position of a body, comma, moving in xy plane, moving in xy plane, because z coordinate is 0, because z coordinate is 0. Bete, now you people have to give the indication to the teacher by raising your right hand if you have understood so far. Please, indication is very important. Then only I can proceed further. Have you understood what is planar motion? Please raise the right hand if you have understood. Raise the right hand if you have understood. If you want to get taught by me. If you are not interested, I'm going. Raise the right hand if you have understood what is meant by planar motion. ये आपके वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे बेटे ये फ्रंट के 6 स्टूडेंट्स हैव यू मेड द टीम टू टीच द टीचर शुड आई इजेक्ट ऑल द 6 स्टूडेंट्स आउट अगर नहीं समझ आया तो बायां हाथ खड़ा करना बायां अगर समझ आ गया तो दायां राइट हैंड अगर दोनों हाथ ना खड़ा करे तो क्लास छोड़ दो शाबाश हैव यू अंडरस्टूड द प्लेनर मोशन okay so this is your planar motion now दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 1 मोटे तौर पे मैं बताऊं आम लैंग्वेज में अगर किसी मोशन के दौरान बॉडी की पी पोजीशन बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स में से कोई एक 0 हो तो वो प्लेनर मोशन होता है एक कोऑर्डिनेट पक्के तौर पे 0 होगा दिस इज योर प्लेनर मोशन ओके नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द कॉन्सेप्ट सेकंड I'm erasing. Shabash. C2. To solve the questions, people should know. Shabash, write down the resolution of a vector. The resolution of a vector. Got it? Suppose this is your x-axis, this is your y-axis, and I have represented a vector from the origin. Say this vector is v vector. It can be acceleration, it can be force, any vector. And suppose this vector is made angle theta with the x-axis.
Remember, this angle can be made with the y-axis also. You can take anywhere. Now, you have to break this y vector into two rectangular components. What are those components? Number one, draw the perpendicular on x-axis. This particular section is known as v cos theta. V cos theta. Remember, another side you draw the perpendicular. The second one, which I have represented by the cyan color, this much, it is called V sin theta. Some students question me, sir, why have you written sin theta here and cos theta here as component magnitudes? The answer is, जिस साइड पे थीटा बना होता है वो कोसाइन कंपोनेंट ऑलवेज, जिस साइन पे थीटा ना बना हो, एंगल ना बना हो, वो साइन कंपोनेंट ऑलवेज। और इसका बेस कहां पर काम करता है? ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ऐसा निकाला गया। और एक बात बची, अब आप सभी को यह भी पता है कि आपको यह भी पता है बेटे कि देयर आर द यूनिट वेक्टर्स x axis, y axis and z axis. The unit vectors are represented by the I cap along x axis, j cap along y axis, and along z axis it is k cap. What is the meaning of unit vector? Unit vector magnitude is always one unity, whether it is k or it is I cap or it is j cap. All the three unit vectors are mutually perpendicular to each other. Why I am telling this? Now the important thing. This velocity vector can be represented by its x component as well as y component. X component Vx I cap and Vy j cap. No need to represent the z component. Why? Because the motion is in yx plane, xy plane. This is the planar motion. Okay. Now what you will put as Vx? Vx itself is known as what is the magnitude along x-axis? That is V cos theta. What is Vy? That is along y-axis. So this is your Vy. Vy is equal to V sin theta. Okay. So ultimately V will be represented as V cos theta I cap, V sin theta j cap. This particular is known as x component. This particular is known as y component of the velocity. So resolving, what is the meaning of resolution? Resolution का मतलब होता है तोड़ना। कई लोग सोचते हैं रेजोल्यूशन का मतलब होता है व्रत। यस, डिटर्मिनेशन भी होता है। हम रोज रोटी खाते हैं, एक दिन हम सोचते हैं आज हम व्रत रखेंगे, मतलब सारा दिन कुछ नहीं खाना। हमने कंटिन्यूटी को तोड़ दिया। रिजॉल्व, तोड़ने से इन्होंने उठाया एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजॉल्विंग ए वेक्टर into its components, it is known as resolution of a vector. अब सिर्फ एक बात यहां पर बचती है। कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन कर सकता है, सर जिस तरफ एंगल नहीं बना हुआ आपने उधर साइन वाला कंपोनेंट क्यों लिया, जिस तरफ एंगल बना हुआ उधर कॉस वाला क्यों लिया, ये हमें समझाओ। तो उसका रीजन मैं देने लगा हूं, ध्यान से सुनना जरा। शाबाश। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं बेटे। सपोज करो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर सपोज बेस, और ये थीटा, दिस इज योर से परपेंडिकुलर। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटे मेरे को इसमें साइन थीटा बताओ, स्टूडेंट विल से सर परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज। तो फिर मैं उसको बोलूंगा बेटे परपेंडिकुलर किसके बराबर है, सर एच साइन थीटा। सो दैट मीन्स ये लाइन
और आपको पता है इसके सामने वाली लाइन, अपोजिट लाइंस ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस। तो अब यही चीज इधर देख लो, तो जिस तरफ एंगल बना हुआ है वो वाली लाइन थोड़ी आई है साइन थीटा वाली, जिस तरफ एंगल नहीं बना हुआ वो लाइन पी आया है हमारा एच साइन थीटा। सिमिलरली देखो ये वाली लाइन बनेगी बी साइन थीटा, क्योंकि ये ओवरऑल बी है, तो जिस तरफ एंगल बना हुआ वो नहीं, उसके सामने वाली, और ये अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो यहां भी साइन थीटा लिख दो या यहाँ। एक और देखो, आपने बचपन में कॉस थीटा 10th क्लास में ये पढ़ा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इधर, देयरफॉर बेस कितना हो गया एच कॉस थीटा। इसका मतलब जिस तरफ एंगल टच कर रहा है उस बी की वैल्यू कितनी आई, कोसाइन कंपोनेंट के रूप में। तो थीटा जिधर टच कर रहा है वो वाला कंपोनेंट, ये वाला इतना, दैट इज व्हाट, कोसाइन कंपोनेंट। आगे समझ। तो अगर कोई बच्चा बोलता है सर मान लो मैं कोई ऐसा एंगल बना दूं, यहां पर अलग एंगल बना दूं, मान लो मैंने एंगल यहां पर फाई एंगल बना दिया, फाई, और मैं थीटा कंसिडर ही नहीं करता, फाई कंसिडर करता हूं, फिर मेरे को कंपोनेंट बताओ। मैंने कहा ओके, इस एंगल की टर्म्स में बोल रहे हो, तब फिर जिधर एंगल बना हुआ वो तो ये लेंथ होगी, फिर ये जो पिंक लाइन जो मैं बोल रहा हूं, फिर ये बनेगी वी कॉस फाई, जिधर एंगल टच हो रहा होता है वो वाला कोसाइन कंपोनेंट ही होता है। तो फाई एंगल इस तरफ नहीं टच कर रहा, तो ये वाला कंपोनेंट जो इस वक्त मैं ड्रा कर रहा हूं, ये लाइन बनेगी वी साइन फाई। तो कोई बच्चा बोलेगा सर आपने पिंक लाइन उतनी ही ड्रा करी है जितनी सियान कलर वाली वी साइन थीटा पुट करी थी, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वी कॉस फाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, या वी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी साइन फाई। तो मेन रूल ये याद रखना है, जिस तरफ हम दोनों में से कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं पहले तो वो देख लो। मान लो थीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो थीटा किधर टच कर रहा है, नीचे कर रहा है, जिस तरफ ये टच करेगा वो वाला कंपोनेंट कोसाइन कंपोनेंट होएगा, जिस तरफ नहीं टच करेगा थीटा वो वाला साइन कंपोनेंट। समझ आया बेटे? देख लो एक बार ओवरव्यू करो और मैं पूछूंगा फिर से। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को अपने कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेकअप करना होता है। अब मेरा क्वेश्चन, दोनों में से एक हाथ खड़ा होना चाहिए, नहीं समझ आया तो लेफ्ट, समझ आया तो राइट। हैव यू अंडरस्टूड दिस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? दोनों हाथ नहीं खड़े आएंगे तो क्लास में नहीं बैठेगा बच्चा। ओके डाउन, शाबाश। तो दूसरी, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। अब हम आगे बढ़ेंगे, वरना आपको कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक होता है बेटे थर्ड कॉन्सेप्ट, लेट मी चेंज द कलर, तो बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बहुत काम आता है, वरना हमें समझ में नहीं आएगी चीजें। ध्यान से सुनो, मान लो मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड करके आंसर बताना है, और मेरे को ए वेक्टर दिया हुआ है लाइक दिस, और बी वेक्टर मेरे को दिया हुआ है लाइक दिस, और दोनों की डायरेक्शंस में एंगल भी दिया हुआ है, मान लो वो एंगल है थीटा। ये मेरी सिचुएशन है, ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर गिवन, थीटा गिवन, एंड आई हैव टू फाइंड इट्स सम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही फिगर में बता दूंगा, अब सम भी बता दूंगा और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी बता दूंगा। ध्यान से सुनना, और मेमोरी टूल भी दूंगा फार्मूला सुन याद करने का। देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले वाले वेक्टर को उठा लो। बच्चा कहेगा सर ओके ये उठा लिया, याद रहे जितना इधर लेंथ है उतना ही उधर लेंथ है होना चाहिए, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे। फिर बी वेक्टर को उठा के बिल्कुल उसके पैरेलल यहां रख दो, उतनी लेंथ का। दोनों वेक्टरों को
एक ही डायरेक्शन से, एक ही पॉइंट से शुरू करना है। जब दो वेक्टर कॉमन पॉइंट से शुरू होते हैं तो कॉमन का को वर्ड उठा लिया, CO। ऐसे दो वेक्टरों को को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, को इनिशियल। एक बात याद रखना है, दोनों वेक्टर तभी ऐड हो सकते हैं अगर उनकी यूनिट सेम हो। फोर्स में फोर्स ऐड हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड हो जाए। सेम यूनिट्स होंगी तो ही दो वेक्टर ऐड हो सकते हैं, तो ही दो वेक्टर माइनस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको ऐड करना कैसे बेटे। ध्यान रखना है, ऐसे केसेस में इन दोनों के बीच की डायरेक्शन का स्मॉलर एंगल थीटा हमें गिवन है, तो मैंने ड्रा कर दिया। सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। ये डॉटेड लाइन ए के पैरेलल ड्रा कर दी मैंने, और जो मैं इस वक्त सियान कलर की लाइन ड्रा कर रहा हूं, सियान कलर की, वो बी वेक्टर के पैरेलल ड्रा कर, जहां ये दोनों कट कर गए यहां पर, और मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस पैरेललोग्राम के मैं दो वेक्टर ड्रा करूंगा। एक वेक्टर मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ये वेक्टर ग्रीन कलर वाला डायगोनल जो है वो उसी पॉइंट से शुरू हो रहा है जहां से दोनों एडेबल वेक्टर शुरू हो रहे हैं। ए और बी जहां से शुरू हो रहे थे वहीं से ग्रीन वेक्टर शुरू होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल। और एक मैंने और वेक्टर ड्रा करा, एक वेक्टर और ड्रा करा, उसको मैं शो कर रहा हूं रेड कलर से, ये देखो। और उसका एरो डाउनवर्ड रखना बच्चे, डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अब इसमें जो ग्रीन वाला वेक्टर है, ग्रीन वाला, वो इन दोनों वेक्टरों की एडिशन देता है। तो अगर मैंने लेट मी चेंज द कलर, अगर मैंने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड करके नया वेक्टर आर वेक्टर लिख दिया, तो ये ग्रीन वेक्टर आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दिस गिव्स द एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, प्राइमरी डायगोनल। और कोई बच्चा रेड डायगोनल क्या देता है? रेड डायगोनल को अगर मैं एस बोल दूं तो एस वेक्टर जो होता है इन दोनों वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन देता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये सब्ट्रैक्शन देता है, आर एडिशन देता है। अब जब हमने किसी वेक्टर को बताना होता है, मान लो आर को बताना है मैंने, तो मेरे को इसकी दो चीजें बतानी पड़ती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड, एक इसकी डायरेक्शन। पहले हम मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। जब भी आर का मैग्नीट्यूड आपसे पेपर में पूछ ले, पेपर में, तो आपने ये फार्मूला निकालना है। या तो मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं या अकेला आर से लिखते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और देसी लैंग्वेज में बोलूं, इस डायग्राम में ये लेंथ कितनी होगी ग्रीन कलर की, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैसे निकलेगा? देखो, आर का फार्मूला बनेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई, उसका स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ दी थीटा अंडर रूट। ये फार्मूला आपने रट्टा लगा देना। अदरवाइज इस फार्मूले की प्रॉपर डेरिवेशन है जो आपको क्लास में सर ने कराई होगी, लेकिन मैं सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट बताऊंगा अभी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा बोले सर एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है, यानी कि बच्चा मेरे से ये पूछना चाहता है, तो एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। समझदार बच्चे ने दोनों फार्मूले कंपेयर कर लिए होंगे कि सर जहां पर आपने येलो कलर का मार्क लगाया है ये दोनों अलजेब्रिक साइन डिफरेंट है, अदरवाइज फार्मूले सेम है। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड मिल गए। अब हमने इनकी डायरेक्शन बतानी है। ध्यान से सुनो, डायरेक्शन कैसे बताऊंगा। डायरेक्शन बताने के लिए मान लो मैंने ग्रीन वेक्टर का ए वेक्टर के साथ यहां पर एंगल बना दिया अल्फा। अगर मैं अल्फा एंगल की वैल्यू निकालना सिखा दूंगा तो दूसरे शब्दों में मैंने ये बता दिया कि मेरा ग्रीन वेक्टर एडिशन वाला वेक्टर आपके दिए हुए ए वेक्टर से अल्फा एंगल बना के जा रहा है। यानी अल्फा को बताना ही
आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अब अल्फा को बताना कैसे है उसका फार्मूला सुन लो। उसके लिए आपको टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालना पड़ता है। एक बार टेंजेंट ऑफ अल्फा पता लग जाए फिर अल्फा निकल जाता है आसानी से। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा कैसे याद करना है, उसके लिए आप यही फार्मूला याद करो। ध्यान से सुनना, मेमोरी टूल। आपने चेक करना है अल्फा दोनों ऐड हो रहे वेक्टर में से किसके साथ टच कर रहा है। क्या वो ए के साथ टच कर रहा है कि बी के साथ। समझदार बच्चा बोलेगा सर साफ ही पता लगता है ये तो ए के साथ टच कर रहा है, बी के साथ नहीं कर रहा। जिसके साथ टच कर रहा हो वो वेक्टर यहां लगाना है अकेला, ओके। और जिसके साथ ना टच कर रहा हो उसका मैग्नीट्यूड ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, जिसके साथ ना टच कर रहा हो, ओके। उसके बाद क्या कर रहा हूं, फिर यहाँ साइन थीटा कर देना है, यहाँ कॉस थीटा कर देना है और यहाँ प्लस का निशान। इस तरह से आपका tan अल्फा निकल जाएगा। अल्फा है क्या, जिधर को आर जा रहा है जिधर को ए जा रहा है उन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल। अब मेरे को एस वेक्टर की भी डायरेक्शन बतानी है, एस वेक्टर की। तो एस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताऊंगा, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा डायग्राम में वापिस आओ। मैं कहूंगा एस वेक्टर इधर को जा रहा है, बच्चा बोलेगा ठीक है। मैं कहूंगा ए वेक्टर उधर को जा रहा है बेटे। लेट्स शो ए वेक्टर की डायरेक्शन व्हाइट कलर से इधर को। तो जिधर को एस वेक्टर जा रहा है जिधर को ए वेक्टर जा रहा है उन दोनों के बीच का अगर एंगल मैं बता दूं तो मेरे को एस वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी। हम कहेंगे कि जिधर को तुम्हारा गिवन वेक्टर ए जा रहा है उससे अल्फा डैश एंगल बना दे, अल्फा डैश एंगल नीचे को बना के ऐसे लाइन खींच दे, उधर को ही हमारी एस की डायरेक्शन है। अब इस अल्फा डैश को कैसे निकालना है, ध्यान से सुनो। अल्फा डैश को निकालने का ये फार्मूला होता है, ध्यान से सुनो। tan ऑफ अल्फा डैश, अल्फा डैश रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एस एंड द गिवन वेक्टर ए। इसको निकालना कैसे है, सारे का सारा ऊपर वाला फार्मूला लगा देना आपने, बस प्लस की बजाय माइनस कर देना है। तो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों को 4 फार्मूले बताए, जब उससे सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी वेक्टरों की और एडिशन भी हो जाएगी। इन चारों फार्मूलों का मैंने प्रूफ नहीं बताया, लेकिन फार्मूले क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मेरे को ये बताओगे आप, क्या इन फार्मूलों को याद करने का मेमोरी टूल और फार्मूले आपको समझ आ गए या नहीं। रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, शाबाश। रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। फर्स्ट लाइन पर्टिकुलर में एक एक बच्चे को देखता हूं, बच्चे ओके। तो इसको नोट कर लेना चाहिए, ये चारों फार्मूले किताबों में मिलते नहीं है एक ही जगह पर। जल्दी फास्ट, बी फास्ट। और मेरे को एक बच्चा माइक पर आकर बताए कि क्या आपको क्लास में ये करवाया है या नहीं करवाया। माइक पे एक बच्चा मेरे को क्लियर कर दे बेटे, ताकि मेरे को जजमेंट हो जाए कि आपको कितना कर है। क्या आपको क्लास में इन फार्मूलों की डेरिवेशन करवाई है या नहीं करवाई। चलो एक और चलते आगे जल्दी से जल्दी। कॉन्सेप्ट नंबर 4 मैं इरेज करने लगा हूं इसको, शाबाश। नहीं कराया सर, नहीं कराया। अगर नहीं दिख रहा है ना, सुनो बेटे, डेरिवेशन आपको टीचर कराएंगे, मैंने आपके रिजल्ट करवाए और उसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब एक बात और सुन लो फटाफट से कॉन्सेप्ट में, शाबाश हरिया। नोट कर लिया ये, इसको नोट करें, असाइनमेंट नहीं होगी। आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। आगे सुनो बेटे, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये भी सुन लो फटाफट। अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनो, अगर कोई बॉडी यहां से मैंने फेंक दी और एक बार जोर लगाने के बाद उसको छोड़ दिया और वो यहां जाके गिर गई,
प्रोजेक्टाइल। Yes, sir. जैसे फुटबॉल को यहां से किक लगाया और वो यहां गिर गई जाके, जैसे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो फेंका, वो यहां गिर गया जाके, जैसे आर्मी ऑफिसर ने यहां से ग्रेनाइड फेंका पाकिस्तान की तरफ, वो यहां गिर गया, जैसे किसी बच्चे ने शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस करता है, लोहे वाला गोला जो होता है यहां से फेंका, यहां गिरता है। तो इसको बोलते हैं, कई बच्चे, एक बच्चे ने बोला प्रोजेक्टाइल, जबकि इसका पूरा नाम है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल बोलना है बेटे। इसकी कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन, जिस पॉइंट से फेंकना है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस पॉइंट पर ये बॉडी गिरी, पॉइंट ऑफ फॉल। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक ही समतल प्लेन पर होने चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, जैसे कि फुटबॉल के ग्राउंड में होते हैं सारे पॉइंट। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो बॉडी ऐसे जा रही होती है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को हमने थ्रो करा उसको प्रोजेक्टाइल, इस पूरे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरी बात, जब इस मोशन की हम इक्वेशन निकालते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ होता है वो हमेशा कप शेप होता है, और कप शेप ग्राफ को पैराबोला बोलते हैं। और बॉडी ने जिस रास्ते को फॉलो करा उस रास्ते को टेक्निकली बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, इसका मतलब आप इस रास्ते को अगर नाम देना चाहें तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल होती है उसको, उसके रास्ते को पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। और एक बात, जब ये बॉडी मूव करेगी तो हालांकि इसके ऊपर सिर्फ थ्रो करते वक्त हमने इनिशियल वेलोसिटी देनी है u, उसके बाद हमारा बिल्कुल भी इस पे कंट्रोल नहीं है। इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी इसको अपने इफेक्ट के मूव करवाएगी, एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर करना है। हालांकि एयर रेजिस्टेंस होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, पर आपकी क्लास छोटी है इसलिए एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके हम ये मोशन करते हैं। क्लियर? अगली बात, जब ये बॉडी चलती है तो बिल्कुल टॉप पर पहुंचती है, इस पॉइंट को बोलते हैं जीनथ पॉइंट। जीनथ का मतलब होता है चोटी, जीनथ पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, हाईएस्ट। और ये बॉडी जिस एंगल से थ्रो करा, यू वेलोसिटी ने कितना एंगल से थ्रो करा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? ये बॉडी जहां से फेंकी थी और जहां पर जाके गिर गई, इतनी लंबाई को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। आर से लिखते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये बॉडी फुटबॉल जाते जाते जमीन से कितनी ऊंची उठ गई, जिसको मैं ये कलर से दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं एच को मैक्सिमम हाइट, या इसका नाम है अल्टीट्यूड, या इसका नाम है वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज। ओके, एक और बात सुनो बेटे, और जित पी से लेकर जेड तक ये बॉडी ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के लिए जितना टाइम लग गया, ऊपर उठने की इंग्लिश होती है एसेंड। एसेंट, तो नाउन बना दिया एसेंट। पी से लेकर जेड तक जाने वाले टाइम को, पी टू जेड, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT। और जेड से लेकर एफ तक, पॉइंट ऑफ फॉल तक, जेड से लेकर फॉल तक, इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, DESCENT, डिसेंट। ओके, और जितनी देर बॉडी हवा में रही, पी से लेकर एफ तक, पी से लेकर एफ तक, इसको बोलते हैं, कितना टाइम वो हवा में रही उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली तक एरोप्लेन गया हो तो मान लो आधा घंटा लगता है, तो हम कहेंगे आधा घंटा एरोप्लेन हवा में रहा, तो उसको फ्लाइट वर्ड बोलते हैं। यहां पर पी से लेकर जेड तक इस प्रोजेक्टाइल ने कितना समय व्यतीत कर दिया, पी से जाने के बाद एफ से गिरने तक कितना टाइम, तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम फ्रॉम पी टू एफ।
इसको कैपिटल टी से लिखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक चीज, अगर मैं इसको, ये जो u वेलोसिटी दे रखी है शुरू वाली वेलोसिटी, अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में ब्रेकअप करूं, x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, इसको x मान लो, इसको y, तो आपको पता है जिधर एंगल बना होता है उधर हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो u cos थीटा को बोलूंगा मैं ux, मान लो ये x एक्सिस है, और जिधर एंगल नहीं बना हुआ उधर परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, उस वाले कंपोनेंट को बोलूंगा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। थोड़ी देर पहले हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। जितनी चीजें मैंने बताई इसको बोलते हैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की टर्मिनोलॉजी। जो जो वर्ड इसमें यूज होंगे क्वेश्चन को समझने के लिए, टर्मिनोलॉजी। अगर कोई बंदा बोले सर नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल जीतना है तो उसको एंगल कितना रखना पड़ता है, थीटा, तो मैं आपको बताऊंगा ये एंगल 45 डिग्री रखना पड़ता है, 45 डिग्री पड़ता है, अब जाके बॉडी मैक्सिमम दूर गिरती है। अब यहाँ पर तीन तरह के मेन क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछता है बेटे, क्या पूछता है, एच का क्या फार्मूला है, आर का क्या फार्मूला है, टी का क्या फार्मूला। एच क्या था, मैक्सिमम कितनी ऊंची गई, आर क्या था, कितनी मैक्सिमम दूर गिरी, टी क्या है, कितनी देर हवा में रही बॉडी, पी से लेकर एफ तक। ठीक है, और मैं ये तीनों फार्मूले अपने बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से मेमोरी टूल देते हुए सिखाने लगा हूं। किताबों वाले फार्मूले बहुत मुश्किल है, मेरे वाले बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार हाथ खड़ा करके बोलो, आर यू पीपल रेडी टू लर्न HRT फार्मूलाज? बोलो यस सर। आर यू रेडी? आर यू विद मी? ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी मच फोकस्ड। बेटे मैं आपको इन तीनों के बहुत ही सिंपल फार्मूले बताता हूं, और मेरे को ये बताओ पहले, एक बच्चा माइक पर, एक बच्चा बोलना फ्रंट लाइन में से, क्या आपको क्लास में ये करा दिया आर्टिकल? नहीं कराया? बेटे एक बच्चा मेरे को कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन दे दो ना माइक पर आकर। अच्छा, ये बच्चे का तरीका मेरे को पसंद आया, बॉय का, इसने क्रॉस कर दिया मतलब नहीं कराया। एम आई राइट? वेरी गुड। आई सिंबॉलिक जेस्चर, मेरे को कंफर्म हो गया बच्चे। तो ये करवाया होना चाहिए क्योंकि ये प्लेनर मोशन के अंदर आता है, और इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। अब मैं इन तीनों के फार्मूले सिखाने लगा हूं आपको। डेरिवेशन टीचर कराएंगे, आपके क्लास टीचर, फार्मूला मैं करा दूंगा, टर्मिनोलॉजी सारी मैंने समझा दिया। ओके, अब मैं इसके फार्मूले लिखाने लगा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो इन तीनों को अल्फाबेटिकली लिखना है आपने, अल्फाबेटिकली, जैसे हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, अल्फाबेटिकली। ओके, और दूसरी बात, अब इन तीनों के जो फार्मूले हैं वो दो दो ब्रैकेट से बने हुए हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है बस, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब सुन लो, इन तीनों फार्मूलों में जो पहले वाली ब्रैकेट है वो